Assalamu alaikum, dear cadets. I hope you will be safe and sound with your families at your houses. Dear gentlemen cadets, today we are going to start our first lecture of biology of class 9th. Dear cadets, today we will discuss about the introduction to biology, which is our first chapter of biology. Dear cadets, in this chapter, we will discuss we will get the introduction of biology, and further this chapter includes main division of the biology, branches of the biology, relationship of biology with the other sciences, careers in biology, Quran and science, contributions of Muslim scientists in biology, and at the end we will study the levels of organizations in living things. So, dear cadets, we start our topic. First of all, dear cadets, we must know that what is science. Dear cadets, science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. Cadets, uh, if we want to understand and know about the nature, then we must know the principles through which this nature is established and the phenomena are being performed in the nature. So, the scientific knowledge helps us to know the principles of nature. Dear cadets, in the ancient times, the scientific information was not classified into different branches as it exists today. Dear cadets, in the ancient days, पुराने वक्तों में साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचें में तकसीम नहीं होती, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड नहीं किया गया था। उस वक्त सिर्फ एक ही नाम था, एक ही नॉलेज, सारा का सारा नॉलेज साइंस कहलाता था। बट with the passage of the time with the passage of time, the knowledge of science increased manifolds and enormous scientific knowledge. अब आज के दौर में साइंस का जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा वसी हो चुका है, तो इसलिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. Dear cadets, now we will discuss about the biology, which is the branch of science. So we will get an introduction to biology. Dear cadets, biology is the scientific study of life. Dear cadets, in biology, we study the life and living organisms in scientific method. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. Dear cadets, बायोलॉजी जिंदगी की साइंसी अंदाज में जो स्टडी है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। अब वर्ड बायोलॉजी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के टू वर्ड से डिराइव किया गया है। एक वर्ड है बायोस विच मीन्स लाइफ, जिसका मतलब है लाइफ, एंड
अदर वर्ड है लोगोस, विच मीन्स थॉट और रीजनिंग, मतलब कि सोचना और ख्याल करना, समझना। तो ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स कंबाइन हुए बाय ओस एंड लोगोस, तो हमारे पास मॉडर्न वर्ड है बायोलॉजी। In the course of biology, we will study how man has thought about living things. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structures, functions, and related aspects of living organisms. Dear cadets, नेचर को समझने के लिए और नेचर के अंदर जो फिनोमेना हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स इस नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, अर्थ के ऊपर मौजूद है, उसके बारे में वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन। देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड and appreciate nature. Dear cadets, now we will discuss the major divisions and branches of the biology. There are there are three major divisions of the biology which study the different aspects of lives of major groups of organisms. Dear cadets, there are three major divisions of biology which are as zoology. This division of biology deals with the study of animals. Dear cadets, zoology बायो की वो डिवीजन है जिसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। सो एनिमल्स के बारे में जो भी स्टडी होगी, जिस लिहाज से भी होगी, फॉर एग्जांपल उनकी फीडिंग हो गया, लिविंग बिहेवियर हो गया, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जोलॉजी के अंदर स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी, this division of biology deals with the study of plants. Dear cadets, बॉटनी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। प्लांट्स की जो ग्रोथ है, उनकी मूवमेंट है, उनका फीडिंग बिहेवियर, उनका लिविंग बिहेवियर, ये सब चीज़ें बॉटनी के अंदर स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट डियर कैडेट्स, third major division of the biology is microbiology. Dear cadets, this division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria. माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होती हैं या वो लिविंग थिंग्स हैं जो आम आँख से हमें नजर नहीं आती, such as bacteria, virus, fungi. So, dear cadets, in order to study all aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. So, we will discuss the some branches of the biology. Dear cadets, सबसे अब बायो एक मेन सब्जेक्ट है। अब बायो को तीन मेन डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इसलिए ताकि जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वो इजी हो जाए, इसलिए ये डिवाइड किया गया है। अब ये जो तीनों मेन डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, अब मज़ीद ये डिविजन्स, इनको मज़ीद अब बहुत सी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वी मूव to study the different branches. Morphology. Dear cadets, this branch deals with the study of form and structures of living organisms.
अब मॉर्फोलॉजी साइंस की बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार होते हैं, उनकी जो शक्ल सूरत होती है ज़ाहरी और उनके जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, उससे रिलेटेड होती है मॉर्फोलॉजी। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर कैडेट्स नेक्स्ट ये ग्रीन बैंड के अंदर हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका दूसरा नाम भी है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. Dear cadets, molecular biology या बायोकेमिस्ट्री बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जिंदगी के लिए जो जरूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अब वाटर है या प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स है या न्यूक्लिक एसिड है, तो ये वो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के लिए इंतहाई नेसेसरी होते हैं, तो इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी। Dear cadets, the study of internal structures of the living organisms is called anatomy. एनाटॉमी के अंदर ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर जानदारों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो उनकी स्टडी को एनाटॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। डियर कैडेट्स, the microscopic study of tissues is called histology. Dear cadets, histology बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर टिश्यूज का डीप लेवल पे, डीप किस्म की जो स्टडी है टिश्यूज की, वो की जाती है। इंतहाई बारीक भी से छोटे लेवल पे, छोटी हद तक ये सारी जो स्टडी होती है टिश्यूज की, छोटे से छोटे और इंतहाई बारीकी से जो स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फिर कैडेट्स नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। The study of the structures and functions of cells and cell organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. Dear cadets, सेल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल या सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलिज बोला जाता है, तो उनके फंक्शन और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं, तो ये ब्रांच कहलाती है सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच also deals with the study of cell division. Dear cadets, जब सेल एक सेल होता है, एक सेल डिवाइड होके डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, 2 या 4 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो ये जो सेल डिवीजन का अमल होता है ये भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर भी स्टडी करते हैं। Dear cadets, it's enough for today. I advise you to prepare your lecture keenly and with full zeal and zest. अपने पूरे तवज्जो से, पूरी केयर से, पूरे फोकस से लेक्चर को आप स्टडी करें। जो कुछ लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया गया है तो उसको आप अपने पास नोट करते जाएं। अपनी नीट नोटबुक है, वो आप मेंटेन करते जाएं, तो अपने नोट्स बनाते चले जाएं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।